پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی، الحمدللہ رب العالمین، آپریشن بنیان مرصوص کے ہیرو، پاک پلائیا کے کیپٹن کامران مسیح اللہ سے وعدے کے مطابق مشن میں کامیاب ہونے کے بعد داخل اسلام ہو کر غازی اسلام بھی ہو گئے۔ کور کمانڈر کی جانب سے کیپٹن کامران کو قرآن مجید کا تحفہ پیش کیا گیا۔ واضح رہے، غازی کامران کی والدہ کا تعلق نرسنگ کے شعبے سے تھا اور وہ ایک نرس تھی۔ نرسنگ کے عالمی یوم کے موقع پر پنجاب میں نجی صحت کے اداروں میں کام کرنے والی 29 سرکاری نرسوں کو سخت سزائیں، 3 نرسوں کی 2 سال کی سروس ضبط، 3 نرسوں کو ملازمت سے محروم اور متعدد نرسوں کے انکریمنٹ واپس، نوٹیفیکیشن جاری۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سندھ 4 سال کے محکمہ صحت کے اعتراضات کا حساب لینے میں ایک بار پھر ناکام ہو گئی۔ ای پی آئی سندھ موٹر سائیکلوں کا غلط استعمال، ڈاکٹر راج کمار نے ڈنڈا اٹھا لیا۔ ضلع اسپتال کراچی میں افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ اورنگی ٹاؤن میں حکومتی جماعت کے یونین کونسل کے مقتول چیئرمین عامر بھٹو کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے ریلی اور احتجاجی مظاہرہ۔ الزام میں ملوث ٹاؤن ناظم جمیل ڈائری کمشنر کراچی کے ہمراہ دورہ قطر ہسپتال میں شامل۔ ضلع اسپتال کراچی مالی بحران کا شکار، نان کیڈر افسر کی تقرری کا شاخسانہ۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا، وہ صحت کی سرکاری اور نجی شعبوں کی چہتم کچا حقائق پر مبنی خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا، ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ناظرین، محکمہ صحت سندھ کی کرپ مافیا قومی آواز نہ اٹھنے کے باعث اتنی طاقتور ہوتی جا رہی ہے کہ اول تو یہاں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی قانون قاعدے کے مطابق حزب اختلاف کے بجائے حکومتی جماعت کے پاس ہے، جس کے چیئرمین نثار احمد کھورو ہیں، اور گزشتہ 4 سال سے عدد اعتراضات ابھی تک طے نہیں ہو سکے ہیں۔ چند مہینوں کے دوران نثار احمد کھورو کی جانب سے متعدد بار محکمہ صحت کے بلائے گئے اجلاس صحت مافیا کی مداخلت اور طاقت کی بنا پر منعقد نہیں ہو سکے، جبکہ گزشتہ روز 13 مئی 2025 کو طلب کیا گیا اجلاس بھی منعقد ہونے کے باوجود اجلاس کسی کارروائی کے بغیر ہی سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کی جانب سے 2 ماہ کی مہلت طلب کرنے کی درخواست پر کمیٹی کے چیئرمین نثار احمد کھورو نے اجلاس پھر ایک بار ملتوی کر دیا، جبکہ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے منعقدہ اجلاس میں گڈ گورننس کی یقین دہانی تو کرواتے ہیں، اب آپ صرف محکمہ صحت سندھ کی جانب سے اربوں روپے کے آڈٹ اعتراضات کو 4 سال سے
ताहाल जेर इल्तिवार रखे जाने पर खुद मुआवजा करने के हुकूमती बुलंदोबान दावे मिसाली हुकूमत के हवाले से कहाँ तक दुरुस्त है या गलत। नाज़रीन कराम, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मंसूब जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर की प्रोक्योरमेंट की इंतहाई हसास जिम्मेदारी हुकूमत सिंध की जानी टीचिंग के सर्जन कैडर अफसर डॉक्टर उबैदुल्ला शेख को अता कर दी गई है, जो न सिर्फ कानून से खिलवाड़ बल्कि कमीशन के नाम पर करप्शन के पहले मुजरिमाना के इस भयानक खेल की शरह तनासुब जो 2 से 3% हुआ करती थी, इस शरह तनासुब को उन्होंने 40% तक पहुंचा दिया है, जिससे रोज बरोज मुल्क की जड़ें खोखली और कौम की हयात में मौत होती जा रही है। मुट्ठी भर करप्ट सियासतदानों और अफसरान का ये गठजोड़ 30 करोड़ आवाम के मुकाबले में कुछ भी नहीं। इस कौमी जुर्म के खिलाफ हम सबको बिला खौफ व खतर अपना कौमी किरदार अदा करते हुए मुल्क के पाकिस्तान और आइंदा नस्ल के मुस्तकबिल को बचाना होगा। लोग कहते हैं कि एलडीएन के चिल्लाने से होता क्या है। जनाब, नजर सानी बजट के लिए हिंदू और मुसलमान ठेकेदारों से 14 लाख रुपए ऊपर देने के नाम पर जो रिश्वत वसूल की गई थी और माले मुफ्त पर हाथ साफ करने का जो मंसूबा बनाया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह एलडीएन की निशानदेही पर इस रकम की एक एक पाई वापस करनी पड़ी है कि नहीं। अब इस रकम को वापस करने के बाद खबर के अंदर की खबर यह है कि लकीर पर जोर आजमाई करके सच खबर देने वालों को दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है, जबकि एलडीएन की तहकीकाती टीम को शनाख्त करना कोई आसान काम नहीं। ये इकदाम चोरी और सीना गोरी जैसे इकदाम पर मबनी वो अमल है जिसको कभी भी दवाम हासिल नहीं हो सका है। ये हुकूमत सिंध के लांग कैडर अफसरान का बेशर्मी पर मबनी वो कारनामा है कि 2 करोड़ रुपए की अदम अदायगी पर मुकर्ररा पेट्रोल पंप की इंतजामिया ने मजीद पेट्रोल डीजल देने से मुतालिक जेपीएमसी की आला इंतजामिया को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है, जबकि हस्पताल में जनरेटर चलाने के लिए डीजल का जखीरा सिर्फ 48 घंटे का रह गया है। मैं यहाँ अपने नाजरीन को ये बताता चलूँ कि मौजूदा इंतजामिया इस्लाह अहवाल के बजाय करप्शन पकड़ने वाले इदारों को हम नवा बनाने की उम्मीद पर सच की आवाज को दबाने और सच्चाई को छुपाने पर अपनी तवानाई और सलाहियतों को अल्लाह के इस गजबनाक पैगाम को फरामोश करके वकुल जाहल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका को बुलाकर भूल भलैयों के अजाब में मुब्तला है और 40 करोड़ रुपए के इजाफी बजट में से लोकल परचेज अदविया के जरूरी 5 करोड़ रुपए से जायद के वाजिबुल अदा बिल को अदा करने के बजाय सोचे समझे बगैर जान बचाने वाली मरीजों की दवा की सप्लाई भी बंद होने के इम्कानात हैं। अस्पताल में दाखिल आईसीयू और सीसीयू के मरीज जान से जा सकते हैं। ये करप्ट माफिया ये भी याद रखे कि ये डॉक्टर सीमी जमाली मरहुमा से ज्यादा मजबूत और बासलाहियत लोग नहीं है। उनके इंतजामी दौर में बिजली की तवील लोड शेडिंग के नतीजे में जहाँ बहक होने वाले 6 मरीजों की मौत की एफआईआर मरहुमा डॉक्टर सीमी जमाली के खिलाफ दर्ज हो गई थी। आज तक के लिए इतने ही। प्रोग्राम के इख्तिताम से कबल गुज़िश्ता रोज 13 मई को औरंगी टाउन में हुकूमती जमात की यूनियन काउंसिल के चेयरमैन आमिर भुट्टो के कत्ल के खिलाफ
मकामी जियालों और अवाम ने कातिलों की अदम गिरफ्तारी और इंतज़ामिया की फुट के खिलाफ मर्दों, ख़वातीन और हज़ारों नौजवानों ने एक बहुत बड़ी एहतिजाजी रैली निकाली और मुजाहरा किया, जिसमें मुजाहिरीन ने जमील डायरी और अलीशा की फौरी गिरफ्तारी के मुतालबे पर मबनी बैनर्स और कदवे हाथों में उठाए हुए मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी के नारे भी लगा रहे थे। इस मौके पर मुजाहिरीन से मकामी नुमाया शख्सियात ने खिताब करते हुए कहा कि उजरती कातिलों के एतराफ़ जुर्म ने मुलविस मुलजिमान को बेनकाब किए जाने के बाद हुकूमती जमात के चेयरमैन बिलावल जरदारी, सिंध के सदर निसार खोरो, आईजी सिंह और डीजी रेंजर्स की जानिब से मुलजिमान के खिलाफ कानूनी इकदाम में गैर जरूरी ताखीर और पुरस्कार खामोशी आमिर भुट्टो के वर्षा और औरंगी के अवाम और जियालों के लिए तशवीश और बेचैनी का बाइस है। हम इंसाफ न होने तक खामोश नहीं रहेंगे, जबकि ये अम्र भी हैरतनाक है कि हुकूमती जमात के टाउन नाजिम जमील डायरी, जो माजी में साबिक जियाली टाउन नाजिम शाहिद आलम और गुड्डू बिहारी के खास चपरासी होने और उनके प्रोग्राम की डायरी हाथ में ले चलने की बिना पर जमील डायरी के नाम से आज मशहूर है, मज़कूरा मुजाहरे से 24 घंटे कबल वो कमिश्नर कराची के दौरे औरंगी में सिंध गवर्नमेंट कदर अस्पताल औरंगी टाउन में मौजूद थे। इसके साथ ही मुजाहरे की फुटेज आप हमारी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं। इस वजह से हम इसको खत्म कर रहे हैं और हम इससे बड़ा मुजाहिरा करेंगे इंशाअल्लाह और इसको मोड़ पे करेंगे। आपने फुटेज मुलाहिजा फरमाई, इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, करप्शन मुर्दाबाद, अवाम व अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।